Hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So basically it's our lecture number 6 of our topic Singularity, in which I'm providing you proper notes, question practice for GATE and NET exams. Basically myself Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start our today's lecture. So basically today we are going to cover the PYQs of NET and GATE exams. And so the first question is, basically this question comes in 2011 NET exam, and it is given that let D is a unit disk, it is an open disk basically, and f is a function from the unit disk D to C be an analytic function satisfying this property. Okay, so let's see what is given to me, like f of 1 by n is 2n divided by 3n plus 1. So why not, let's suppose कि मैंने यहाँ क्या किया, अगर मैंने 1 अपॉन n को z मान लिया, then in this case what we get n is equals to 1 by z. तो मेरे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, so the function becomes f of 1 by z की वैल्यू 1 by n की वैल्यू एक्चुअली मेरे पास z है, तो फंक्शन बन गया मेरे पास f of z is equals to now 2 times now the value of n we have calculated 1 by z. तो अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू रखूँ, so it becomes 2 by z upon 3 by z plus 1. So this becomes, it is 2 by z divided by 3 plus z divided by z. Now z will be cancelled out. So from here we get our function f of z is equals to, it is 2 upon 3 plus z. तो जो फंक्शन अभी यहाँ पे हमें 1 upon n के फॉर्म में गिवन था, मैंने क्या किया, उसको z के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. सो ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो ऑप्शन नंबर ए में हमसे कहा जा रहा है कि हमें f of 0 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमारे पास क्या फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन बना है f of z इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 प्लस z. तो अगर मैं यहाँ पे f of 0 निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 बाई 3 प्लस 0 विच मीन्स 2 बाई 3. सो यस, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन नंबर बी. Okay, so option number B is, okay, now let's see the option number B. In this question it is saying that f has a simple pole at z is equals to -3. Okay, so now let's see हमें यहाँ पे कौन से पोल्स मिल रहे हैं. तो हमारे पास फंक्शन है f of z is equals to 2 divided by 3 plus z. तो अगर मैं इसके पोल्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसके डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के इक्वल कर दूंगा. So from here we get z is equals to -3. It is a singularity. Now we have to check क्या ये हमारे पास पोल बनता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं at point -3 of the function. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 divided by 3 plus z, and z की वैल्यू जैसे मैंने -3 रखा, so it becomes 0 which is infinity. So yes, -3 is a पोल. बट हमसे तो यहाँ पे सिंपल पोल की बात की जा रही है. इसका मतलब अब मैं इसका ऑर्डर निकालूंगा. तो अगर मैंने इसका ऑर्डर निकाला तो ऑर्डर क्या है, कैसे निकालते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर पार्ट को फंक्शन मांग लेते हैं. तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 3 प्लस जेड, और अगर मैंने इसका इसमें एक्चुअली -3 पॉइंट को पुट किया, सो इट इज 0. तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, इट इज 1 विच इज नॉन जीरो वैल्यू. सो द ऑर्डर विल बी द फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज 1. यानी कि अगर ऑर्डर 1 है तो मैं इसको बोलता हूँ इट इज अ simple pole. So yes, -3 is a simple pole, which means option number 2 is correct. Now let me erase this part. Okay, now we will see our next option, number C. Okay, now let's see the option number C. इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें f of 3 की वैल्यू निकालनी है. तो अगर मैं यहाँ पे f of 3 वैल्यू निकालूंगा, it becomes 2 divided by 3 plus 3. So it is 2 by 6 which means 1 by 3. So yes, option number C is also correct. And 4 is no such f exist. It is wrong because f तो exist कर रहा है. So the correct options are A, B and C are my correct options. Okay. Now let's see the question number 2. In this question it is saying that let f be a function, it is a meromorphic function and analytic at 0, satisfying this property. Now again it is the same question. अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने अगर 1 अपॉन n को लेट सपोज z मान लिया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ n की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई z. तो हमारा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, इट इज f ऑफ 1 बाई
एन इट इज z इज इक्वल्स टू, n को लिख सकता हूं मैं 1 by z अपॉन इट इज 2 by z plus 1. So our function becomes 1 by z upon 2 plus z divided by z. Z से z cancel out. So from here f of z is equals to, it is 1 upon 2 plus z. It is our function. तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखूँ, ऑप्शन नंबर ए में हमसे कह रहा है f of 0 की वैल्यू. f of 0 क्या हो जाएगा? It is 1 by 2. So yes, option number A is true. Now option number B. सो ऑप्शन नंबर बी में हमसे कह रहा है कि f हैज अ पोल एट z इज इक्वल्स टू -2. तो अगर मैं अपने फंक्शन को देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कौन से पोल्स आएंगे? अगर मैंने डिनोमिनेटर पार्ट को 0 किया, so from here we get z is equals to -2 is a singularity. क्या ये सिंगुलैरिटी पोल बनेगी? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लिमिट से चेक करूंगा. मींस लिमिट z टेंड्स टू -2 f ऑफ z, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन 2 प्लस -2 विच इज इन्फिनिटी. सो यस, -2 इज अ पोल. बट हमसे सिंपल पोल की बात कर रहा है, यानी कि अगेन वी विल चेक द ऑर्डर. सो ऑर्डर चेक करने के लिए जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको मैं h मान लेता हूँ. सो इट इज z प्लस 2. अगर मैंने यहाँ पे -2 रखा, सो इट विल बी 0. इट इज अ नॉन जीरो, नॉट अ नॉन जीरो वैल्यू. और हमें क्या चाहिए ऑर्डर के लिए? नॉन जीरो वैल्यू. तो मैं h डैश निकालूंगा एंड इट इज 1 विच इज अ नॉन जीरो वैल्यू. सो द ऑर्डर इज nothing but 1, and if the order is 1 then it is a simple pole clearly. So our second option is true. अब हमें चाहिए ऑप्शन नंबर सी में f of 2 की वैल्यू. so f of 2 is nothing but 1 by 2 plus 2 which means 1 by 4. so yes, option number C is true. 4 कह रहा है no such meromorphic function exist. it is wrong क्योंकि फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है. okay, so this question basically comes in 2012 NET exam. Now let's solve the third question. Basically in this question it is given that, now read the question, let h इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं सच दैट कि y हमेशा हमारे पास पॉजिटिव है. y पॉजिटिव यानी कि ये हमारे पास कुछ अपर प्लेन की बात कर रहा है जहाँ पे y सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव प्लेन की बात नहीं कर रहा. ओके, सो इसमें कह रहा है कि बी द अपर हाफ प्लेन. ओके, सो हमारे पास h क्या है? h हमारे पास एक तरह से आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए कि अगर मैं इसको x एक्सिस और इसे y एक्सिस मानूं, देन this is only considered whenever the y is positive, which means this region. Basically this region is nothing but h. इसको मैं कह रहा हूँ h. okay, and d जो कि हमारे पास एक ओपन यूनिट डिस्क है, एन ओपन यूनिट डिस्क. ओके, तो हमारे पास एक डिस्क है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. तो अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करूँ, लेट्स सपोज इट इज द यूनिट डिस्क जिसका सेंटर पॉइंट O है और ये ओपन है. तो अगर ये ओपन है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ. बेसिकली इसके पास जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो नहीं होंगे. इट इज अ ओपन यूनिट डिस्क. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट फिर हमसे क्या कह रहा है? ओके, अब हम हमसे ये कह रहा है कि सपोज दैट f इज अ Mobius ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स h कन्फर्मली ऑन टू t. ओके, तो अब हमसे कह रहा है कि अगर मैंने क्या किया, एक फंक्शन f लिया जो कि इस अपर हाफ प्लेन से मैं d तक क्या कर रहा हूँ, एक मैप ले रहा हूँ, और दिस इज द यूनिट डिस्क d जहाँ पे ये पॉइंट 1 है एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट -1. इट इज अ ओपन यूनिट डिस्क. तो अगर मैंने कुछ इस तरह का फंक्शन लिया जो कि अपर हाफ प्लेन से ओपन यूनिट डिस्क में जा रहा है, सच दैट किस तरह का फंक्शन है कि अगर मैंने f में 2 आयोटा रखा तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा. तो जब कभी भी हमारे पास एक मोबियस फंक्शन गिवन होता है, तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बताना चाहता हूँ आपको कि जब कभी भी हमारे पास एक मोबियस फंक्शन होगा जो कि अपर हाफ प्लेन से यूनिट डिस्क में जा रहा है, ओपन यूनिट डिस्क, तो उस केस में फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? तो उस केस में फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे लाइक f ऑफ z इज इक्वल्स टू e पावर, इट इज एक्चुअली iota. okay, so e power, yes, our function becomes e power iota lambda times z minus alpha divided by z minus alpha बार. कुछ इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन होता है. अब आपको लगेगा कि ये फंक्शन कहाँ से आ गया, तो ये फंक्शन जब मैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर लूंगा तो उस केस में ये फंक्शन को मैं
ड्राइव कराऊंगा कि ये फंक्शन एक्चुअली में आता कहाँ है। अभी आप इसको एज अ ट्रिक मानिए कि जब कभी भी हमारे पास एक अपर हाफ प्लेन होगा एंड एक यूनिट डिस्क होगा तो उस केस में जो फंक्शन डिफाइन होता है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। नाउ नाउ लेट्स सी, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब भी मैं f की वैल्यू 2 आयोटा लेता हूँ तो मुझे 0 मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर इसका मतलब कि अल्फा की वैल्यू 2 आयोटा होगी, क्योंकि तभी जब मैं यहाँ पे z की वैल्यू भी 2 आयोटा ले लूंगा और अल्फा की वैल्यू भी 2 आयोटा है तभी हम मुझे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और फिर मुझे 0 मिल जाएगा। ओनली दिस इज द पॉसिबिलिटी देयर। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें 2 आयोटा मिल गई। तो इस केस इसलिए अगर मैं अपने फंक्शन को डिफाइन करूँ एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा, इट इज ई पावर आयोटा लैम्डा टाइम्स z minus 2 iota divided by z plus 2 iota, like this it is our function। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं, सो ऑप्शन नंबर ए में हमसे कह रहा है कि f has a simple pole at z is equals to -2। तो क्या f के पास एक सिंपल पोल है? सो लेट मी erase this part। ओके, सो वी हैव टू चेक अबाउट द सिंपल पोल ऑफ आवर फंक्शन। क्या हमारे पास सिंपल पोल होगा? सी ऑप्शन नंबर ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फंक्शन गिवन था मैं इसको लिखता हूँ। फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ई पावर आयोटा लैम्डा एंड इट इज जेड माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई जेड प्लस 2 आयोटा इज अवर फंक्शन। तो अगर मैं इसके डिनोमिनेटर पार्ट को देखूँ, मीन्स अगर मैंने इसकी सिंगुलैरिटी निकाली तो सिंगुलैरिटी क्या आ जाएगी, सिंगुलैरिटी बिकम्स जेड प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर जेड इज इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा। क्या ये हमारे पास पोल बनेगा? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लिमिट चेक करूंगा, यानी कि लिमिट z tends to minus 2 iota of the function and the function is e power iota lambda z minus 2 iota divided by z plus 2 iota। So this becomes e power iota lambda, it is minus 2 iota and divided by minus 2 iota plus 2 iota। So clearly it will be cancelled out, denominator will be 0, so it is infinity, and whenever we get infinity so that means 2 iota is a pole। सो अब क्योंकि ये पोल है तो मुझे सिंपल पोल चाहिए, तो मुझे ऑर्डर चेक करना होगा। तो अगर मैंने इसके डिनोमिनेटर पार्ट को मीन्स z प्लस 2 आयोटा को h माना और इसमें अगर मैं माइनस 2 आयोटा रखूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा, यानी कि मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट इज 1 विच इज नॉन जीरो। सो इट्स ऑर्डर इज नथिंग बट 1, यानी कि हमारे पास एक सिंपल पोल बनेगा। सो यस, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड ऑप्शन। सो लेट मी इरेज दिस पार्ट। Okay, yes, now let's solve the second part। So in the second part it is given that सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे f ऑफ आयोटा एंड f ऑफ माइनस आयोटा इन दोनों की वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले मैं f ऑफ आयोटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। f ऑफ आयोटा कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमारे पास फंक्शन था, हमारे पास फंक्शन क्या आया था, f ऑफ z इज इक्वल्स टू ई पावर आयोटा लैम्डा इंटू z माइनस 2 आयोटा अपॉन z प्लस 2 आयोटा इज अवर फंक्शन। तो यहाँ पर मैं आयोटा की वैल्यू रखता हूँ, इट बिकम्स ई पावर आयोटा लैम्डा into iota minus 2 iota which means minus iota and iota plus 2 iota which means 3 iota is there, so this becomes minus 1 over 3 e power iota lambda। then हमें चाहिए f of minus iota। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लेट मी राइट, यस हमें चाहिए f of minus iota। so it is e power iota lambda and minus iota, so minus iota minus 2 iota, it is minus 3 iota divided by minus iota plus 2 iota, so it is iota, iota से iota कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया e पावर iota lambda एंड विथ माइनस 3। अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया लाइक f ऑफ आयोटा मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ माइनस आयोटा, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि f ऑफ माइनस आयोटा के ऊपर हमने यहाँ पर बार भी लगाया है। तो अगर मैंने यहाँ पे f ऑफ माइनस आयोटा के ऊपर बार लगा दिया, सो इट बिकम्स फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस 1/3 ई पावर आयोटा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई, अगर मैंने इसके ऊपर बार लगाया सो आयोटा विल बी माइनस आयोटा, दिस इज द चेंज, इसके ऊपर बार लग जाएगा, बार का मतलब आयोटा के ऊपर मैंने माइनस लगा दिया, सो दिस बिकम्स इट इज ई पावर माइनस आयोटा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3। सो 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इट इज प्लस माइनस यहाँ से कट गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सो यस, ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो
correct option. Now let me solve this option number C. So let me erase this part. Okay. Now let's see the option number C here. So ऑप्शन नंबर सी में हमसे कह रहा है कि F has essential singularity. So it is incorrect because हमें तो सिर्फ और सिर्फ poles ही मिले थे. So clearly C is incorrect. We do not have any essential singularity here. Now let's solve option number D. Option number D में हमसे कह रहा है कि मुझे F of 2 plus 2 iota की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर मुझे उसका मॉड लेना है. तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इट इज मॉडुलस वैल्यू ऑफ e पावर आयोटा लैम्डा इनटू नाउ z माइनस 2 आयोटा के अंदर अगर मैं इसको रखता हूँ 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से एंड इट बिकम्स मॉड ऑफ e पावर आयोटा लैम्डा इनटू मॉड ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 आयोटा. सो फ्रॉम हियर इसकी वैल्यू होती जाती है हमारे पास 1 and it is 2 divided by mod of 2 plus 4 iota. So this is 2 divided by square root of 2 plus 16, which is 2 divided by square root of 20, and 20 can be written as 2 divided by 2 root 5. So clearly 2 will be cancelled out. So it is 1 by root 5 is our answer. So yes, option number 4 is also correct. So the correct options are A, B and D are my correct options of this question. Okay. So now let's solve this question number 4. See, this question is asked in 2009 in our GATE exam. Okay, so in this question it is given that we have a function और इस function को मैं यहाँ लिख देता हूँ clearly. It is e power iota z divided by z times z square plus 1. It is our function. Now the residue of f at the isolated singular point in the upper half plane is. So मुझे actually क्या चाहिए? मुझे इसके रेसिड्यू चाहिए इन द अपर हाफ प्लेन. मीन्स अच्छा, सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि अगर मुझे रेसिड्यू चाहिए तो रेसिड्यू के लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए? ओके, सो लेट मी राइट डाउन हियर. इफ आई वांट द रेसिड्यू ऑफ एनी फंक्शन, लेट्स सपोज एफ ऑफ जेड इज एनी फंक्शन, सो रेसिड्यू में कैसे फाइंड करता हूँ? रेसिड्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? पोल होना चाहिए. यानी कि जब हमारे पास पोल होगा तो उसी से तो मैं रेसिड्यू फाइंड करूंगा. क्योंकि मैं कैसे लिखता हूँ रेसिड्यू? मैं लिखूंगा रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट z इज इक्वल्स टू a एंड वेयर दिस इज अवर पोल. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या फाइंड करना होगा? मुझे अपने पोल्स फाइंड करने होंगे. तो इसलिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? अपने पोल्स ऑफ द फंक्शन. सो पोल कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले सिंगुलैरिटीज. सो अगर मैं यहाँ देखूँ, जैसे ही मैंने अपने डिनोमिनेटर पार्ट को 0 रखा तो मुझे क्या मिल जाएगा? सो वी गेट z टाइम्स z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. So it is z times, it is nothing but z plus iota into z minus iota is equals to 0. So from here it is clear that z is equals to 0. हमारे पास एक possibility आएगी. Z is equals to minus iota is a possibility and z is equals to iota. 3 हमारे पास केस आएंगे जहां पर मुझे पोल्स मिल रहे हैं. So these are our poles. बट केस यहाँ पे ये है कि हमें किस पॉइंट पर सिंगुलैरिटी चाहिए. हमें चाहिए सिंगुलैरिटी, मतलब हमें चाहिए एक्चुअली रेसिड्यू इन द अपर हाफ प्लेन. तो मुझे देखना होगा कि ये जो पोल्स हमारे पास आए हैं ये अपर हाफ प्लेन में कहाँ पे आ रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर हाफ प्लेन? लेट्स सी हियर. अपर हाफ प्लेन मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. तो अगर मैं देखूँ z इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है एंड y की वैल्यू भी 0 है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू इट इज एक्चुअली -1 एंड -1 इज लेस देन 0 एंड यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? इट इज 1 एंड यस 1 इज पॉजिटिव. यानी कि अगर मैं देखूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है. सो अगर मैं यहाँ पर रेसिड्यू निकालूंगा अपने फंक्शन का अपर हाफ प्लेन में, तो अपर हाफ प्लेन की प्रॉपर्टी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ z इज इक्वल्स टू आयोटा. सो दैट्स व्हाई here it will be z tends to iota. Okay, so now let's see कि ये जो हमारे पास पोल आया, okay, let me see here कि जो हमारे पास z is equals to iota is a pole in upper half plane. ये तो हमारे पास आ गया. बट रेसिड्यू निकालने के लिए हमें इसके एक्चुअली
ऑर्डर जानना होगा कि ये कितने ऑर्डर का पोल है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर के लिए हम अपने डिनोमिनेटर पार्ट को h मान लेंगे, विच इज एक्चुअली z क्यूब प्लस z। अगर मैंने इसमें लेट सपोज आयोटा रखा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इट इज आयोटा क्यूब प्लस आयोटा, आयोटा क्यूब इज नथिंग बट माइनस आयोटा प्लस आयोटा, इट इज 0। अगर मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला विच इज 3z स्क्वेयर प्लस 1, और इसमें मैंने अगर यहाँ पे आयोटा रखा सो इट इज 3 टाइम्स iota square which is minus 3 plus 1 which is minus 2 which is non-zero. Since it is non-zero then definitely the order will be 1. So which means कि मुझे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारे पोल है उसका ऑर्डर 1 है, तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे रेसिड्यू फंक्शन का निकालना है। तो इसके लिए हमें ट्रिक मालूम है कि जब कभी भी हमारे पास ऑर्डर 1 होता है और मुझे क्या निकालना है, किसी फंक्शन f ऑफ z का एक्चुअली में रेसिड्यू निकालना है, और फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है लाइक f ऑफ z अपॉन g ऑफ z। तो उसका रेसिड्यू क्या होता है, उसका रेसिड्यू हो जाएगा हमारे पास f ऑफ z डिवाइडेड बाई g डैश z एट द पॉइंट, जो भी पॉइंट पे हमारे पास हम निकाल रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट रेसिड्यू एट z टेंड्स टू आयोटा एंड द फंक्शन इज e पावर आयोटा z अपॉन z टाइम्स z स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो हम इसको यहाँ पर f मान सकता हूँ मैं, और इसे मैं g मान सकता हूँ। तो क्लियरली आई कैन अप्लाई द शॉर्ट ट्रिक हियर, सो दिस बिकम्स द लिमिट z tends to iota and f of z which means e power iota z upon g dash। तो अगर मैं इसका यहाँ पे डेरिवेटिव करूँ इट बिकम्स 3z स्क्वायर प्लस 1, और जैसे ही मैंने यहाँ पे आयोटा की वैल्यू रखी इट बिकम्स e पावर आयोटा इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 1, सो इट इज e पावर माइनस 1 divided by minus 3 plus 1, so it is minus 1 upon 2e is our answer. Now let's see the options. So yes, option number A is correct, 2 is incorrect, 3 is incorrect, 4 is incorrect. So 2 is our it is 1 is our correct option of this question. Okay, so now let's solve this question number 5. This question has been asked in GATE exam in 2011, and in this question it is given that let f such that c to c be an analytic except for a simple pole at z is equals to 0. Okay, so what is given to me, it is given to me that f has a simple pole at z is equals to 0. तो अगर मैं f of z को डिफाइन करना चाहूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 1 over z minus 0, यानी कि f of z is nothing but 1 by z. Then it is given that g be analytic function, g is any analytic function. So let's suppose if I have taken g of z is my 1, a constant function जो कि हमारे पास everywhere analytic होगा, it is an analytic function. Then we have to calculate the residue of this thing. तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बन गया मेरे पास, it is nothing but the residue z tends to 0 and fz into gz। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ तो मेरे पास 1 by z ही बन जाता है, and which is divided by, so this is the residue at z tends to 0 and f of z, and f of z की वैल्यू हमारे पास 1 by z ही है। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास यहीं से कट जाएगा, which means we get 1 here। यहाँ से इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ से देखूं तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, इट इज g ऑफ 0। ओके, तो अगर मैं g ऑफ 0 की वैल्यू निकालूं जो कि मैंने एक कांस्टेंट दिया था, इट इज नथिंग बट 1 बिकॉज ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, एंड यस दे आर एक्चुअली इक्वल, सो यस ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को देखता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है g डैश ऑफ 0, और मुझे मालूम है मैं जैसे ही अपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा ये हो जाएगा 0। सो दिस फंक्शन इज एक्चुअली हमारे पास क्या आ रहा है, लेट मी सी। देखिए इसको मैं फिर से बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में जैसे ही मैंने g डैश निकाला तो ये तो हमारे पास 0 आ गया, बट जिस वैल्यू को मुझे फाइंड करना है वो तो हमारे पास 1 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल, सो बी इज इनकरेक्ट। सी में अगर मैं देखूँ तो अगर मैंने यहाँ पे z को टेंड कराया सो दिस वैल्यू गोज टू 0 which is not equals to 1, यानी कि it is also incorrect. This value is also goes to 0, it is incorrect. So the correct option is A. Okay. So now let's solve this question. Okay. So in this question it is given that if the function fz is equals to f upon g
has a simple pole at z is equals to 0. Okay, so we have a simple pole. Then we have to find the residue of function at a. Okay, so it is just a formula. We know that कि जब कभी भी हमारे पास फंक्शन होता है f of z is equals to fz upon g of z, और मुझे रेसिड्यू फाइंड करना है अपने फंक्शन f of z का एट पॉइंट a, तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट फाइंड करते हैं z टेंड्स टू a पर. जो f of z है वो तो हम ऐसे ही लिखेंगे और इसका हम कर देते हैं डेरिवेटिव. तो जैसे ही मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास f of z अपॉन g डैश z, और जैसे ही लिमिट पुट करेंगे सो इट इज f of a अपॉन g डैश ऑफ a. सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, which means option number B is my correct option. Okay, now let's see the question number 7. In this question, it is given that the function fz is equals to this has a pole of order p and residue r at z is equals to 1 point. और मुझे p और r की वैल्यू इसमें एक्चुअली फाइंड करनी है. Okay, so now let's solve this question. So first of all हमें कैसा फंक्शन है, हमारे पास है fz is equals to 1 upon z 1 minus z की पावर 3. अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे कितनी सिंगुलैरिटीज मिल रही हैं. हमारे पास जो सिंगुलैरिटीज हैं वो हैं z इज इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू 1. एंड क्लियरली क्योंकि यहाँ पे 0 की पावर 1 है, यानी कि यहाँ पर 0 का ऑर्डर तो 1 हो गया एंड इसकी पावर यहाँ पे 3 है, विच मीन्स 1 की ऑर्डर हमारे पास 3 हो जाएगी. और हमसे z इज इक्वल्स टू 1 के बारे में ही पूछ रहा है, यानी कि उसकी ऑर्डर 3 है. तो हमें p की वैल्यू यहाँ से मिल गई, p इज नथिंग बट 3. तो हमारे पास p की वैल्यू यहाँ पर 3 आ रही है, विच मीन्स a एंड d आर इनकरेक्ट. अब हमें यहाँ पर रेसिड्यू फाइंड करना है. तो अगर मैं यहाँ पर किसी भी फंक्शन का रेसिड्यू फाइंड करना चाहता हूँ एट z इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, मीन्स whenever z tends to 1, so actually it is nothing but at z is equals to 1 point. तो रेसिड्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, तो रेसिड्यू के लिए मुझे ऑर्डर मालूम होना चाहिए, और वी नो दैट द ऑर्डर इज 3 हियर. सो इट बिकम्स द फॉर्मूला 1 अपॉन 3 माइनस 1 का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इट इज एक्चुअली फैक्टोरियल, देन इट इज मल्टीप्लाइड बाई द सेकेंड डेरिवेटिव विच मीन्स d2 ओवर dz स्क्वेयर ऑफ द फंक्शन. और फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारे पास पोल है उतनी पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने फंक्शन से. सो इट इज f ऑफ z. तो ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल टाइम्स d2 ओवर dz स्क्वेयर, यहाँ हो गया z माइनस 1 का क्यूब, एंड द फंक्शन इज हियर 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का क्यूब. तो यहाँ से क्यूब कैंसिल आउट हो गया. सो फ्रॉम हियर वी गेट 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाई d2 by dz square of the function 1 by z. So it becomes 1 by 2 times. अगर मैं इसको 1 times derivate करूँगा so it is actually d by dz of minus 1 upon z square. और अगर मैं इसको second time derivate किया so this becomes it is minus 2. So it is minus minus plus 2 upon z cube. 2 से 2 यहाँ से cancel out हो जाएगा and hence we get it is actually अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे किस पॉइंट पर चेक करना था, z इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट पर अपने सिंगुलैरिटी को निकालना था, यानी कि मुझे यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू 1 लेना पड़ेगा अपने फंक्शन के लिए. सो इट इज नथिंग बट 1. सो इट्स रेसिड्यू इज 1 विच मीन्स r की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई. सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट एंड B इज इनकरेक्ट. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज B ओनली. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 8. Basically in this question it is given that for the function f of z, this z is equals to minus 1 minus iota is a pole of order. Okay, so actually what is given to me, हमारे पास point given है minus 1 minus iota जो कि एक पोल है हमारे फंक्शन का, और हमको इसकी ऑर्डर फाइंड करनी है. तो जब कभी भी मुझे ऑर्डर फाइंड करना होता है उस केस में हम अपने डिनोमिनेटर को, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको एक फंक्शन h मान लेते हैं. बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे डिनोमिनेटर में पावर 4 है एंड ड्यू टू दिस पावर 4 अगर मैं इसको यहाँ पर नेग्लेक्ट करूँ और सिर्फ अपने इस फंक्शन को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ. क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस फंक्शन का ऑर्डर क्रिएट कर लिया, मीन्स अगर मैंने इस फंक्शन का ऑर्डर निकाल लिया, देन आई कैन मल्टीप्लाई इट बाई 4 एंड दिस इज अवर
answer of this question. So let me first find the order of the h. तो h मैंने क्या माना, it is z square plus 2z plus 2. अगर मैंने इस फंक्शन में अपने पॉइंट को रखा विच इज -1 माइनस आयोटा, पोल को रखा, सो इट इज -1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -1 माइनस आयोटा प्लस 2. सो लेट मी सॉल्व दिस. इट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर and it is plus 2 iota, and it is minus 2 minus it is actually minus 2 iota plus 2. So plus minus 2 will be cancelled out, this cancel out, and this is also -1, so we get 0 here. तो हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. सो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इट इज 2z प्लस 2, और जैसे ही मैंने अपने पॉइंट को इसमें रखा, सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स -1 माइनस आयोटा प्लस 2. So it is -2 iota plus 2. 2 will be cancelled out. So it is -2 iota, which is a non-zero value. And since it is a non-zero value, then clearly its order is nothing but 1. क्योंकि हमें इसके फर्स्ट डेरिवेटिव पर नॉन-जीरो वैल्यू मिलती है. एंड क्योंकि हमारा आंसर कैसे निकलेगा, आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हम अब इस 1 में जो भी हमारे पास ऑर्डर आया, ओके, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑर्डर आया है उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दैट इज अवर आंसर विच मीन्स 4. सो ऑप्शन नंबर D is my correct option. Okay. So now let's solve this question. Okay. In this question it is given that if f of z has a pole at z is equals to a, यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके पास पोल आ रहा है, यानी कि जो भी हमारे पास टर्म होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, एंड z इज इक्वल्स टू a पोल है, यानी कि z माइनस a मुझे कंसीडर करना चाहिए. इट इज 1 अपॉन z माइनस a. So if this is the function, then as z tends to a, then f of z. तो अगर मुझे यहाँ पे मॉड ऑफ f of z की बात की जा रही है तो मैं मॉड लगा देता हूँ. जैसे मैंने मॉड लगाया, so now it this becomes कि z tends to a. So if I have created here limit, जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया z tends to a पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, it is nothing but a minus a, so which is 1 by 0, which means infinity. So our function tends to infinity, यानी कि ऑप्शन नंबर C is my correct option. Okay, so now let's solve this question. In this question it is given that if gz is analytic at z is equals to a, यानी कि g of z हमारे पास एक analytic function है. So if it is an analytic function, I can suppose something analytic function. Let's suppose मैंने मान लिया g of z is nothing but 1. It is an analytic everywhere, so definitely at z is equals to a पर भी हमारे पास ये analytic ही होगा. Yes. Then हमसे कहा जा रहा है कि fz has a pole of order k at z is equals to a point. So let's suppose मैंने f of z को क्या मान लिया, जिसके पास a point पर पोल आ रहा है एंड उसका ऑर्डर k, तो पावर k हो जाएगा. देन रेसिड्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इट इज रेसिड्यू एट z is equals to a point, and the functions here are, okay, so at z is equals to a point. Now g of z की वैल्यू 1 थी, so it is nothing but f dash of z divided by f of z. तो मुझे इस फंक्शन की यहाँ पे क्या चाहिए, रेसिड्यू चाहिए. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, f dash z फाइंड करना होगा. सो f dash z क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज z माइनस a की पावर माइनस k. सो f dash z becomes माइनस k टाइम्स z माइनस a की पावर माइनस k माइनस 1. सो f dash z अपॉन f of z क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, सो दिस बिकम्स माइनस k टाइम्स z माइनस a की पावर माइनस k माइनस 1 divided by z minus a की power minus k. So minus k will be cancelled out. So from here we get minus k times z minus a की power minus 1, which means it is minus k divided by z minus a is our function f dash of z over f of z. This is our function. तो अगर मैं इस फंक्शन की रेसिड्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ at point x is equals to a, and the function is f dash z upon f of z is our function. यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे रेसिड्यू फाइंड करना है at z is equals to a point of minus k upon z minus a. तो अगर मैं देखूं तो रेसिड्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, डेफिनेटली पोल, और क्लियरली यहाँ पर इस फंक्शन के लिए जो पोल है वो हमारे पास a है और इसका ऑर्डर बिकॉज ऑफ पावर इज 1, सो ऑर्डर हमारे पास 1 है.
सो क्लियरली हम ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या कहती है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको एज इट इज लिख दीजिए, यानी कि लिमिट z टेंस टू a पर जो भी न्यूमरेटर है मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाई जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1, so it is nothing but a constant minus k is our residue. So now let's check the options. Options में क्या हमें negative k मिल रहा है? So let's see option number A. So it is only k, it is not a negative, so it is incorrect. Option number 2, it is negative 1 by k dash. अगर मैं k का dash ले लेता हूँ but it is not a derivative of k, so it is also incorrect. Option number 4 में हमारे पास negative तो है but it is k factorial, but it is not a factorial, so it is also incorrect. यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट बिकॉज मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी हमारे पास है के वो एक नेगेटिव के आ रहा है। सो यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट व्हिच मींस ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। This question is asked in 2013 in NET exam. In this question it is saying that the residue of the function this at z is equals to 0. तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन का रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं e पावर माइनस एंड देन इट इज e पावर 1 बाई z, कुछ इस तरह का फंक्शन है। अगर मैंने यहाँ पर e पावर 1 बाई z का एक्सपेंशन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इट इज नथिंग बट 1 प्लस 1 बाई z प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 बाई z स्क्वायर एंड सो ऑन, इट्स द एक्सपेंशन। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया सो दिस बिकम्स e पावर माइनस 1 प्लस 1 बाई z प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एंड फ्रॉम हियर। अब मैंने क्या किया, लेट सपोज कि मैंने जितने भी कांस्टेंट पार्ट थे मींस z की पावर मींस e पावर माइनस 1 को अगर मैं अलग कर लूँ और जितने भी वेरिएबल पार्ट्स हैं उसको अलग कर लूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, इट बिकम्स e पावर माइनस 1 को मैंने अलग कर लिया इंटू e पावर माइनस 1 बाई z प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इन सबको मैंने अलग कर लिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, इट बिकम्स e पावर माइनस 1 इंटू, अगर मैं फिर से e पावर माइनस z, सपोज वी हैव e पावर माइनस z और इसको मैंने एक्सपेंड किया तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस z प्लस z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लाइक दिस, इस तरह से ये एक्सपेंड होगा। अगर मैंने इसको यहाँ पर लगा के एक्सपेंड किया सो दिस बिकम्स एक्चुअली 1 माइनस z एंड z की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1 बाई z प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई z स्क्वायर देन प्लस 1 by 2 factorial into 1 by z plus 1 by 2 factorial and so on definitely into 1 by z square and so on का पूरे का होल स्क्वायर अप टू so on, इस तरह से ये कुछ सीरीज चलेगी। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए z इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास रेसिड्यू और z इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास जो भी पोल आ रहा है इट इज अ ऑर्डर ऑफ 1। भाई यहाँ तो ऑर्डर 1 आएगा, यानी कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे कोफिशिएंट ऑफ जो भी मुझे रेसिड्यू चाहिए, मुझे चाहिए एक्चुअली में कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई z माइनस 0, मुझे कुल मिलाकर के ये चाहिए। देखिए एक मीन्स जब मैं रेसिड्यू पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि रेसिड्यू का मतलब क्या होता है। रेसिड्यू इज नथिंग बट मुझे जिस भी पॉइंट पर रेसिड्यू चाहिए होगी, अगर मैं उसको डिनोमिनेटर पार्ट में ले जाकर उसके कोफिशिएंट को देख लूं कि फंक्शन में उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, सो दैट कोफिशिएंट वैल्यू इज नथिंग बट द रेसिड्यू ऑफ आवर फंक्शन। यानी कि अगर मुझे चाहिए रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू 0 ऑफ द फंक्शन तो मैं क्या करूंगा, मैं कोफिशिएंट निकाल लूंगा ऑफ 1 बाई z माइनस 0 का, एंड z माइनस 0 का ना लिख करके सिर्फ 1 बाई z लिखूं दैट इज ऑल्सो फाइन। तो अब इस पार्ट में हमारे पास 1 बाई z कहाँ आ रहा है, लेट्स सी 1 बाई z इज कमिंग हियर ओनली, तो मुझे इस 1 बाई z के कोफिशिएंट चाहिए। तो इसके कोफिशिएंट मुझे कैसे मिल रहे हैं, लेट्स सी यहाँ पर जो 1 बाई z है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस नेगेटिव साइन से, मीन्स विद दिस माइनस 1 एंड ई पावर माइनस 1 भी यहाँ पर है। सो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हमारे पास हो गया माइनस 1 multiplied by e power minus 1 which is minus e power minus 1 is our answer, is our residue. So the option number
C is my correct option of this problem. Okay, so basically I have covered all these PYQs of singularity topic, and from tomorrow basically I will start the analytic functions and CR equations. From tomorrow I will start these topics and the PYQs based upon these topics. Okay, thank you.